Hello friends, do you all know Jeev Patel? Who was Jeev Patel? Jeev Patel was an English poet and he also wrote poems and plays in English. His poem appear in the Illustrator Weekly of India also. So today we are going to start one of his poem which is on killing a tree, which is given by the Jeev Patel. As we have discussed about the Jeev Patel, so one more point that he lives in Mumbai and practices medicine. Now, what is the introduction of this poem? That in this poem, what we are able to see, what we are able to understand is that this is the best known poem by Jeev Patel. The poet compares the tree to human beings. According to him, trees also have the right to live like any other creature, but he is pained to see that it is the human being only who kills the trees with utmost cruelty. The poet has all sympathy for the trees. In this poem, poet is giving the sympathy. Poet is sharing his sympathy towards the trees. You must have observed people cutting down the trees. But can you imagine that they can even kill a tree? हम ट्री को कट होते हुए तो देखते हैं, लेकिन किल वर्ड क्यों यूज हुआ है? It's just an personification word. So let's see what the poet says on killing a tree. Now our poem starts. It's the first stanza. It takes much time to kill a tree. Not a single jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, and absorbing the years of sunlight, air, water, and outside of its leprous height sprouting leaves. So in this whole first para, what we are going to understand that over here the poet is saying that not it take much time to kill a tree, not a single jab of knife. मतलब कि the one struck, एक ही बारी एक ही झटके में a knife, a blade of the knife can't cut a tree or can't kill a tree. The word kill, whenever killing is done, the who is in front of us is killed, is vanished, मतलब पूरा ही ख़त्म ही हो जाता है. लेकिन इधर तो if we cut a tree, so it grows and grows, but if we kill a tree, then the tree won't grow. अब कोई ऐसी चीज़ जो उसको कट करने से ट्री किल हो जाए, that's our roots. In this picture which you are seeing, it's just a cutting of tree, not a killing of tree. Now over here poet is saying that अगर हम trunk पे like this image person is doing, तो अगर हम एक ही बारी में अगर हम कट करने की कोशिश भी करें तो we won't be successful because the tree has grown slowly consuming the earth. हम सबको पता है कि जो ट्री होता है उसको ऑलमोस्ट 100 to 1000 ईयर्स लगते हैं ग्रो होने में. एक छोटे से प्लांट से उसको एक ट्री बनने में 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं. तो दैट्स वाई अब ये यहाँ बोल रहा है पोएट कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट्स, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट से उसकी जो सीड्स को हमने डाला और वो जो ऐसे फीड हुआ है, जो फीड होके जो ऐसे अब्जॉर्ब पूरा राइज हुआ है, वो सब उसने क्या क्या एब्जॉर्ब किया, सनलाइट, एयर, वाटर, वो सब. और उसके अंदर से लेप्रस हाइड, मतलब जो ब्राउन उसका जो ट्रंक होता है ब्राउन होता है और मतलब बिल्कुल ही अजीब सा होता है, पूरा गंदा सा, बहुत गंदा सा होता है. लेकिन उसके अंदर से ब्यूटीफुल लीव्स स्प्राउट होती हैं, ब्रांचेस स्प्राउट होती हैं, जिसके अंदर से फ्रूट्स और फ्लावर्स स्प्राउट भी होते हैं. तो एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, तो मतलब कि इसने इतनी मेहनत करी और इसका फल भी इसको अच्छा ही निकला कि इसने लीव्स को स्प्राउट किया. लेकिन कहाँ से? एक लेप्रस हाइड से, मतलब एक जस्ट एक थोड़ी गंदी सी, जैसे पूरा ब्राउनिश, पूरा रफिश, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन उसके जो फ्लावर्स आते हैं, जो लीव्स आती हैं, कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, राइट.
So here the second para is saying that so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and form close to the ground, will rise curled green twigs, miniature bogs which if unchecked will expand again to the former size. अब ये इधर बोलते हैं कि अगर हम अच्छे से पूरे ट्री को कट कर दे तो उसको तो मतलब पहले हमने उसको कट किया तो उसको पेन होगी, मतलब पेन तो होगी लेकिन वो तो हमें दिखेगी नहीं. अब जैसे कि अगर इफ़ वी गॉट हर्ट, so the bleeding starts, the blood bleeding starts from, like for example there is a cut in my hand, so bleeding would be coming from that cut. तो प्लांट्स में भी निकलती है लेकिन वो एक ब्राउनर सा सब्सटेंस निकलता है जो बाग के अंदर से निकलता है. सो ब्लीडिंग बाग, अब वो तो अपने आप को हील कर लेगी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो भी हमको अपने उस चोट को हील कर लेते हैं. वैसे ही जो बाग है उसकी जो जो ब्लीडिंग बाग है वो भी हील हो रही है, वो भी हील हो जाएगी ग्राउंड से. वही मिनरल्स वगैरह, वही अपना नॉर्मल वो पोस्चर करके, मतलब पूरा प्रोसीजर करके वो पूरा हील कर सकती है अपने आप को, करेगी भी वो. और वही फिर से ग्रीन कर्ल्ड ट्विग्स सब आ जाएंगे बाहर. मैनिएचर इफ़, अब मैनिएचर बॉज मतलब कि स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रीज जो हैं, छोटे छोटे पार्ट भी जो ट्विग्स होती हैं, अब अगर हमने उसको नहीं काटा और एक ऊपर से पार्ट को काट लिया, 1/4 पार्ट को हमने काट लिया, लेकिन 3/4 पार्ट को हमने काट लिया और 1/4 बचा है, तो वो 1/4 भी तो एक ट्री का पार्ट ही है, चाहे छोटा ही है, लेकिन उससे भी तो वो आगे जाके ट्री ग्रो हो सकता है. और अगर हमने उसको अनचेक किया, मतलब उसको अगर हमने चेक नहीं किया तो वो वही बड़ा होएगा और अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा. बस वही टाइम ज़्यादा लेगा, फिर वो फिर से अर्थ के जो ये सनलाइट है, वाटर वगैरह सबको एब्जॉर्ब करेगा क्रस्ट से. So it was just explaining about the pain of the trees. Now here what is this? Now no, the root is to be pulled out of the anchoring earth, is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet. The most sensitive hidden for years inside the earth, then the matter of scorching, choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it's done. Hence, a tree is killed. So, in last para, we have just discussed that what are the steps for cutting a tree, for finally killing a tree, which is scorching, chalking, in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it's done. But in the third para, ये तो फोर्थ पैरा था, फाइनली कट हो गया, लेकिन इसके पीछे जो एक स्टेप है, मेन स्टेप ये है कि वी हैव टू पुल आउट द रूट्स. रूट को जब हम पुल करेंगे तभी जाके पूरा ट्री कट होएगा, मतलब आई मीन किल होगा. एंकरिंग अर्थ जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, वही एंकरिंग अर्थ उसको, द ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, वी ऑल नो. दैट्स वाई एंकरिंग अर्थ से जब उसकी रूट्स निकलेंगी, मतलब वही अच्छे से रोप्स लगा के टाइटली उसको पकड़ के फिर हमें पूरा ऐसे निकालना है, एंड इट विल बी स्नैप्ड आउट देन, और पूरा प्रॉपरली पूरा इंटायरली बाहर निकालना है. फिर जो अब वो एक रूट्स जो होती है वही सिर्फ ट्री की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि अगर रूट्स नहीं होगी तो हल्की सी हवा चलेगी पेड़ नीचे गिर जाएगा. तो इसलिए रूट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. द सोर्स वाइट एंड वेट, बहुत सेंसिटिव होती हैं वो, और अर्थ के अंदर नीचे जाके बहुत छुपी हुई होती है. वाइट कलर की रूट्स होती हैं और गीली तो होंगी क्योंकि वाटर और सॉइल से निकलती तो गीली होंगी. जब वो सॉइल से निकलते हैं तो मिट्टी उनके पास थोड़ी सी लगी रहती है अभी भी, तो इसीलिए वो हमें थोड़ी ब्राउनिश दिखती है, वरना वैसे तो रूट्स वाइट ही होती हैं. सो हेयर एंड देन द मैटर जो हमने बाहर निकाला है उसको फिर स्कॉच चॉक करके ब्राउनिंग, जैसे वो ब्राउन होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है, उसको ट्विस्ट करके वेदर करके फिर वो फाइनली पूरा ट्री यूज़ में आता है हमारे. So guys, what was the synopsis of this poem?
you can see on the screen that in this poem on killing a tree by Jeev Patel, the poet wants to tell us difference between the cutting of trees and killing of trees. According to him, cutting is the type of trimming which is required for time to time for the proper growth of trees, but it will take too much time to kill a tree. It is not just a simple jab, a quick stab or a blow to do the job. As we discussed in the first para, the tree grows slowly by getting its nourishment from the earth, by absorbing the years of sunlight, air, water, that we also discussed in the first para itself. Nourishment from the earth, finally the strength of its tree exposed when the roots are completely pulled out, when we discussed in the second last para. Exposed when its roots are completely pulled out with the help of a rope, और they are snapped out cruelly, मतलब बहुत अपने उसके लिए cruelly, kindly is opposite of cruelly. After that they are hardened, twisted and weathered, and at last the tree is killed. So now अब ये नॉर्मल जर्नल नॉलेज के लिए नाउ आगे वी आर गोइंग टू रीड दैट इफ वी कट अ ट्री what are the effects not affect, it's effect usually bad ही होता है. तो effect of killing a tree, so what is the effect is that it has been noticed that trees are used as a fuel or timber while the cleared land is used for settlement. The removal of the trees without sufficient reforestation has resulted in damage to habitat and biodiversity loss. Third point, it had adverse effect. इफ़ेक्ट तो मैंने आपको बताया कि बुरा होता है, हम सबको पता है कि इफ़ेक्ट बुरा होता है, लेकिन इसका जो सबसे एडवर्स इफ़ेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर पे पड़ता है. और जैसे इट कॉजेज सॉइल इरोजन ऑल्सो, हमने सब ने पढ़ा हुआ है ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस, और अगर ट्रीज़ किल हो जाते हैं तो कट हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द वाटर साइकिल तो वी ऑल नो, जो बारिश पूरा रेनफॉल का जो पूरा पीछे प्रोसीजर होता है वो सब वाटर साइकिल होती है. नाउ here in the first line we just read that trees are used as a fuel or a timber. So here now trees are used as timber. Now what is the importance of the timber is used as a fuel and constructing the buildings. Now the second point we discussed was the soil erosion. What is the soil erosion? It is on your screen. The top layer of the earth, which is fertile, washed away in the absence of the trees. जो सॉइल इरोजन होता है कि सॉइल इरोड हो जाना, मतलब किसी वाटर, विंड या किसी नेचुरल एजेंट की वजह से वो जब इरोड हो जाता है, जब वैनिश हो जाता है, वॉश्ड हो जाता है, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. लेकिन सॉइल का जो मेन, जो बहुत ही फर्टाइल पार्ट होता है वो होता है ह्यूमस, जो सबसे टॉप लेयर होती है. अब जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, वो सॉइल को बाइंड ही नहीं करेंगे, तो जो ह्यूमस इतने अच्छे से, मतलब इतनी बहुत टाइम लगा के, ईयर्स को स्पेंड करके जो बना है, वो तो हल्की सी हवा से या पानी से ख़त्म, सब वेस्ट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस. Biodiversity is the degree of variation of life. Different species resisting in forest area get lost due to the loss of their habitat. बस वही बायोडाइवर्सिटी लॉस एक टर्म न्यू आ गई है, लेकिन हमें पता है अगर ट्रीज़ कंबाइन करके पूरा एक ग्रुप होता है फॉरेस्ट जो होता है एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट होता है. अब जब फॉरेस्ट एरिया ही नहीं रहेगा तो उनका हैबिटेट भी हट जाएगा. And at last, when we discussed about the water cycle, we all know that water cycle is the process of bringing rain. Then it consists of evaporation, condensation, and that transpiration, expiration, वगैरह. Water cycle is disturbed in the absence of the trees. In water cycle, there are only a few processes that gives back to the atmosphere, such as transpiration, just I discussed, transpiration, expiration, and evaporation. Now, what is transpiration?
Transpiration is the process by which water is lost from the trees to the atmosphere by stomata. स्टोमाटा भी हमने पढ़ा. ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, एक्सपिरेशन हमने सब पढ़ा हुआ है. इफ ट्रीज आर किल्ड देयर विल बी लेस ऑफ वाटर रिटर्निंग इन द एटमॉस्फेयर. सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी, तो ह्यूमन लाइफ गेट डिस्टर्ब्ड. नाउ व्हाट विल द इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ किलिंग ऑफ द ट्री, ऑफ कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री? As we know that the trees bring rain, if we kill the tree, there is adverse impact on agriculture. Environment और agriculture पे बहुत adversely impact करता है, ये effect करता है. It causes economic hardships and misery to the farmers and humans. Bad rainfall leads to major decline in the food production. We all know. अब वही जब एटमॉस्फेयर और ये अपनी लैंड पे, एग्रीकल्चर पे जो ये इफ़ेक्ट ला रहा है, तो उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा. तो एटमॉस्फेरिक चेंज जो ये लाता है वो क्या है? डू यू थिंक दैट किलिंग ऑफ ट्री रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंज? अंडर दिस टॉपिक आई एम जस्ट आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि ट्रीज़ को किल करने से क्लाइमेट में कोई चेंज आएगा? यस, क्योंकि जो भी क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें भी तो मेन काम फॉरेस्ट वगैरह का ही होता है. क्योंकि क्लाइमेट में क्या होता है? समर्स, कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, रेनफॉल से रिलेटेड आता है हमारा मॉनसून पीरियड. तो वही सब ट्रीज़ पे डिपेंडेंट होता है. मॉनसून, रेनफॉल है तो ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है. सो येस, नाउ रीड द आंसर दैट यू आर करेक्ट. Everything about our life is tied to the climate, such as food, production, water, supplies, health, and well-being, etc. अब हमने ये ट्रीज़ को किल करने के लिए तो पढ़ लिया. अब ट्रीज़ एक बार किल हो गए तो हो गए, लेकिन बाकियों को हम कैसे सेव कर सकते हैं? हमने एक मूवमेंट पढ़ा था जब हम बहुत छोटे थे, हमने 4th-5th में पढ़ा था, वन चिपको मूवमेंट. वी ऑल नो इट्स रक्षा सूत्रा मूवमेंट इज ऑल्सो देयर. So Chipko movement, let's see. Chipko movement was started by Sundarlal Bahuguna. This was first initiated by Amitra Devi while protesting against the king's men to cut the tree. This movement inspired the people of hugging trees to protect them from being fallen. Let's see the pic of that. Over here they are just hugging the tree that तुम्हें पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा, हमको काट के तुमको जाना होगा. Now what happened? अब उत्तराखंड में जब हुआ तो उसको रक्षा सूत्र मूवमेंट का नाम दिया गया. The people of the Uttarakhand hills of Uttar Pradesh have always been at the forefront of forest protection movement. They protested the forest policy of British. Recently, in Tehri, a group of social workers and women activities initiated action program to check the increasing tree felling activities of the forest corporation. Over here this is Raksha Sutra movement. Now अब हमने ये movements पढ़े. Now one more thing, it's the slogans. स्लोगन्स तो हम सब बनाते भी हैं, हमें दिख भी जाते हैं, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. अब ऐसे ही सेव ट्रीज़ का भी है, that save Mother Earth by saving trees. Plant a tree so that next generation can get air for free. These all are the slogans. अब हम जब पढ़ रहे थे अभी, ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस भी है, इफ़ेक्ट भी बुरा पड़ता है, तो हमने कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी पढ़ा. तो अब वही इम्पोर्टेंस का जो जिक्र हुआ था वो यहाँ पे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे. दैट ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल इन मैनी वेज. They clean the soil by filtering sewage and chemicals used in the farms. They help control noise pollution and reduce flash flooding. फ्लैश फ्लडिंग तो हम सबको समझ में आता है. नॉइज़ पॉल्यूशन भी हम सबको पता है, जब बहुत तेज़ साउंड होती है तो ट्रीज़, वुड के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो आवाज़ को जस्ट कंट्रोल कर देता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है आवाज़ को. जैसे कि अगर आप कभी स्ट्रीट पे चिल्ला रहे हो कि ओए, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होगा तब भी आपको उसी आवाज़ से सुनाई देगा. लेकिन अगर आप एक छोटे से पार्क के, सब शांति है वहाँ पे, छोटे से पार्क के एक कॉर्नर पे खड़े हो और दूसरे कॉर्नर पे आपका फ्रेंड, आप उसको बोल रहे हो ओए यहाँ पे आइयो, तो उसको आवाज़ नहीं जाएगी. चाहे उस पार्क के अंदर कोई भी नहीं है, चाहे एक चिड़िया की भी चूँ चूँ नहीं है, लेकिन तब भी वो आवाज़ नहीं जाएगी उसके पास. क्यों? क्योंकि जो वुड होते हैं
उनके पास एक टेंडेंसी होती है कंट्रोल करने की नॉइस को. ट्रीज अब्जॉर्ब, अब एक और वो आ गया कि ट्रीज जो है वो अब ये तो हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट मतलब ठीक रखता है. दे ऑल्सो क्लीन द एयर बाय अब्जॉर्बिंग पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. They also help to lower the temperature. They give shade during the summer and act as a windbreaks during the winter if they are located on the windward side. अभी जब हमने पढ़ा था कि अगर ट्रीज़ नहीं है तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी चेंज पड़ता है, तो उसमें भी हम ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि समर्स में वो हमें शेड देता है. तो अगर ट्रीज़ ही नहीं होगा तो समर्स में हमें शेड कौन देगा? सबसे पहली बात, अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वुड नहीं आएगी तो घर नहीं आएगा. तो समर विंटर कोई भी क्लाइमेट हो, कोई भी टेम्परेचर हो, तो हमें प्रोटेक्ट कैसे करेगा? कौन करेगा? तो लेट अस ऑल प्लेज, नाउ इट्स अ प्लेज दैट लेट अस ऑल प्लेज द चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, वी विल ग्रो ट्रीज टू इंक्रीज द वर्थ. ग्रीनरी इज अ precious jewel, let us carve it to keep all well. So here ends our extra knowledge about the trees and our poem.